برقی شاک لگنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ٹولی چوکی پیرامونٹ کالونی میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ 17 سالہ سید انیس الدین مکان میں الیکٹرک موٹر پمپ کا سوئچ کھولنے کے لیے گئے تھے، تاہم برقی شاک لگنے کی وجہ سے وہ گر پڑے۔ ان کو دیکھنے کے بعد ان کے رشتے کے بھائیوں 18 سالہ رزاق اور 17 سالہ رضوان ان کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے، تاہم ان دونوں کو بھی برقی کا شاک لگا جس سے وہ گر پڑے۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی پڑوسی وہاں جمع ہو گئے۔ پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی اور پولیس نے ان تمام کو ایمبولینس کے ذریعے دواخانہ منتقل کیا، تاہم ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں مردہ قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی گزشتہ روز دعوت افطار میں نامناسب انتظامات پر کئی افراد میں برہمی دیکھی گئی۔ کئی افراد کھانا کھائے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے۔ ان افراد نے حکومت کے انتظامات پر سوال اٹھائے اور کہا کہ روزہ داروں کا مناسب طور پر خیال نہیں رکھا گیا۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے گزشتہ روز کھمم میں پیش آئے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں سازش کے پہلو پر بھی جانچ کی جائے گی۔ وزیر موصوف نے آج نمس میں زیر علاج متاثرین سے ملاقات کی اور ان کو فراہم کیے جانے والے علاج کی سہولتوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ تارک راما راؤ نے متاثرین کو بہتر طبی امداد فراہم کرنے کا ڈاکٹرز کو مشورہ دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کے مہلوکین کی ورثہ کو فی کس 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا حکومت نے اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے اس واقعے میں جھلس جانے والے افراد کی بہتر صحت کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے عوامی شعبے کے اداروں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوامی اداروں کو فروخت کیا گیا تو ملازمین کا نقصان ہوگا۔ وزیر موصوف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اڈانی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقصانات کو عوام کے نام پر کیا جا رہا ہے، جبکہ فائدے کو اپنے پسند کے افراد میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی عوامی اداروں کی نجی کاری کے خلاف ہے۔ انہوں نے اڈانی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ حکومت ان کو فائدہ پہنچانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر فینانس ہریش راؤ نے تلنگانہ میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ تلنگانہ میں ووٹرز کی حیثیت سے اپنے نام درج کروا لیں۔ انہوں نے آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے ایسے ورکرز جو یہاں سکونت پذیر ہیں انہیں آندھرا پردیش میں اپنے ووٹ منسوخ کرواتے ہوئے تلنگانہ میں ووٹرز کی حیثیت سے نام درج کروانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ کہتے ہوئے کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، انہوں نے پڑوسی ریاست کے ورکرز سے کہا کہ وہ اپنے ووٹ منتقل کر لیں۔ وزیر موصوف نے سنگاریڈی میں مستری سنگم بھون کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد یہ ریمارکس کیے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری ریاستوں کے کئی افراد تلنگانہ میں سکونت پذیر ہیں، ان میں آندھرا پردیش کے کئی افراد بھی شامل ہیں۔ یہ افراد آندھرا پردیش اور تلنگانہ دونوں ریاستوں کو دیکھ رہے ہیں اور آندھرا پردیش کے دورے کے موقع پر انہیں اس ریاست کی سڑکوں اور دواخانوں کی حالت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ جب یہ ورکرز یہاں رہتے ہیں تو پھر ووٹ وہاں کیوں رہیں۔ انہوں نے پڑوسی ریاست کے ورکرز کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے ووٹ منسوخ کرواتے ہوئے تلنگانہ میں ووٹرز کی حیثیت سے اپنا اندراج کروا لیں۔ سابق وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور سینئر لیڈر پی سرینواس ریڈی کو بی جے پی میں شامل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی کے ریاستی سربراہ بنڈی سنجے اور رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر اس سلسلے میں دہلی میں ہائی کمان سے ربط میں ہیں۔ ساتھ ہی کانگریس کے لیڈر مہیشور ریڈی کو بھی پارٹی میں شامل کرنے کی کوششوں میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ مہیشور ریڈی کو حال ہی میں پارٹی نے وجہ نمائی نوٹس جاری کی تھی۔ بھٹنڈا ملٹری اسٹیشن میں پیش آئے واقعے سے سنسنی پھیل گئی۔ گزشتہ روز پیش آئے اس واقعے میں 4 فوجی جوان ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے 1 گھنٹے کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ کل شام ایک جوان جو گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا کی موت ہو گئی۔ اس سے پہلے کے واقعے سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق اتفاقی طور پر بندوق کے چل جانے سے فوجی جوان کی موت ہوئی ہے۔ شہر کے نواحی علاقے میں نقلی چاکلیٹس کی تیاری کا کام کیا گیا۔ راجندر نگر حدود کے سلیمان نگر میں ایک یونٹ قائم کرتے ہوئے نقلی چاکلیٹس کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ایس او ٹی پولیس نے یہاں پر دھاوا کیا۔
इस दावे में ये मामला सामने आया। नकली चॉकलेट्स की तैयारी में नुकसानदेह केमिकल्स भी मिलाए जा रहे थे। पुलिस ने केमिकल्स की बोतलों और रंग के डब्बे भी जब्त कर लिए। एक अजीब और गरीब वाक़े में तेलुगु देशम की खातून कायदीन ने विजयवाड़ा के नुन्ना पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक कुत्ते के खिलाफ शिकायत की। ज़राए ने कहा कि अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि कुत्ते ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का एहतराम नहीं किया और दीवार से जगन का स्टिकर निकाल दिया। महाराष्ट्र के बीआरएस कायदीन ने सिद्दीपेट ज़िले के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, जहां उन्होंने कई तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने फलाही स्कीमात की तफसीलात से भी वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर यहाँ की स्कीमात और तरक्याती कामों से वो काफ़ी मुतासिर हो गए। उन्होंने कहा कि वो इन स्कीमात पर मौसर तौर पर अमलावरी से हैरत ज़दा हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में तेलंगाना रियासत काफ़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। रामनवमी जुलूस के दौरान गोडसे की तस्वीर को दिखाने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहनायतगंज पुलिस ने ये कार्रवाई की। मुलजिम की शिनाख्त 21 साला हेमा कुमार के तौर पर की गई है, जो एपी का रहने वाला है और ITI टेक्नीशियन है। वो फ़िलहाल गच्चीबोली के सिद्दीक नगर में मुकीम है। हेमा कुमार बीजेपी का सरगर्म कारकुन है। इसने गोडसे की तस्वीर को रैली में दिखाकर रक्स किया था। ये शोभा यात्रा जुलूस बीजेपी के मलून रुकने असम्बली राजा सिंह की जानिब से निकाला गया था। इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया था। इस नौजवान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 504 के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे रिमांड कर दिया गया। माफिया से सियासतदान बने अतीक अहमद के बेटे और एक नौजवान गुलाम इनकाउंटर में हलाक हो गए। ये दोनों प्रयागराज में उमेश पाल कत्ल मामले में मतलूब थे। इन पर फीकस 5 लाख रुपए का इनाम था। झांसी में पेश आए एक इनकाउंटर में ये दोनों हलाक हो गए। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास से असरी हथियार जब्त किए गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद शहर में जलसा यौमुल कुरान मुनक़िद किया गया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद ने जलसे यौमुल कुरान की सदारत की। जलसे से मुखातिब होते हुए उन्होंने मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की जानिब से दौरे अमेरिका के मौके पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को खुशहाल करार देने के तबसरे पर नुक्ताचीनी की और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर्स चलाने, मुसलमान बच्चों को दी जा रही स्कॉलरशिप को रोक देने, गौ रक्षकों के हाथों मुसलमानों को मौत के घाट उतार देने के वाक़यात को दोहराते हुए मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी पर निशाना साधा। असद ओवैसी ने असद अहमद और अमजद गुलाम के पुलिस के हाथों इनकाउंटर किए जाने के वाक़े पर भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जुनैद और नासिर का कत्ल करने वाले गौ रक्षकों को इनकाउंटर करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाल ही में बांडीपुरा जंगल में शेर नजर न आने पर ड्राइवर को जिम्मेदार करार देने के वाक़े का जिक्र करते हुए MP हैदराबाद ने वज़ीर आज़म पर भी शदीद तंज किया है। साउथ जोन DCP साई चैतन्या ने फलकनुमा पुलिस की जानिब से मुनक़िद की गई दावत इफ्तार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और आबदार खाने का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। मौसम गर्मा के पेश नज़र फलकनुमा पुलिस की जानिब से पीने के पानी का नज़्म किया गया है। DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन के अहाते में कायम किए गए आबदार खाने का इफ्तिताह किया। बाद दावत इफ्तार में शिरकत की। फलकनुमा ACP जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए दावत इफ्तार की नज़्म और आबदार खाने के इफ्तिताह से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई हैं और आवाम से इस सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तादीबी कार्रवाई कमेटी की जानिब से वजह बताओ नोटिस जारी करने के एक दिन बाद साबिक़ रुकन असम्बली A महेश्वर रेड्डी कांग्रेस से मुस्तफ़ी हो गए हैं और बीजेपी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। महेश्वर रेड्डी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने की शिकायतों के मौसूल होने के बाद नोटिस जारी किया गया था। उनकी बीजेपी में शमूलियत की इतलात भी गर्दिश कर रही थी। महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा रवाना कर दिया। बाद उन्होंने दिल्ली में बीजेपी उमूर के तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग से मुलाकात की और बीजेपी कौमी सदर JP नड्डा से मिलने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने जिले कृष्णा के नीमाकुर में टीडीपी के बानी एनटी रामाराव की 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह अंजाम दिया है। चंद्रबाबू नायडू मछलीपट्टनम में जल से आम को मुखातिब करने के बाद नीमाकुर पहुंचे, जहां उन्होंने एनटीआर और बसवा तरगम के मुजस्सिमों पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और एनटीआर की 7 साला तकरीब का आगाज किया। नीमाकुर गांव में एनटीआर की 7 साला तकरीबात के हिस्से के तौर पर पीले झंडियां नस्ब की गई हैं। आन जहानी एनटीआर और चंद्रबाबू नायडू के फ्लेक्सीज लगाए गए हैं। चंद्रबाबू नायडू इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद गोड़ीवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो एक रोड शो करेंगे और एक बड़े जल से आम में भी शिरकत करेंगे। खम्मम जिले के कारेपल्ली मंडल में धमाके के मुतासिरीन से मुलाकात के लिए जाने वाली साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी समेत दीगर कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने रोक दिया। गुज़िश्ता रोज खम्मम जिले के कारेपल्ली मंडल चीमलापाड़ू गांव में बीआरएस के आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम के मौके पर आतिशबाजी के सबब गैस सिलेंडर फट पड़ने का वाकया पेश आया था, जिसमें 2 अफराद हलाक जबकि दीगर जख्मी हुए हैं। साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और मुश्तरिका खम्मम जिले के कांग्रेस कायदीन आज महलकीन के अहले खाना से मुलाकात के लिए जा रहे थे कि कामलीपल्ली मंडल के तालागुड़म के करीब पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस कायदीन ने उन्हें रोक देने पर पुलिस के रवैये पर शदीद नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बड़ी राहत देते हुए टोली चौकी के असासे फरोख्त करने की इजाजत दे दी है। डॉक्टर नोहेरा शेख, फाउंडर व सीईओ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए बताया कि साल 2018 से कंपनी के खिलाफ जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं, उन इल्जामात को 4 साल का वक्फा गुजरने के बाद भी साबित नहीं किया जा सका और उनकी गिरफ्तारी के पीछे सियासी खुसूमत थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ इंसाफ किया है, उन्हें जायदादों को फरोख्त करने की इजाज़त दे दी है ताकि वो सरमायाकारों को उनकी रकम लौटा सकें। अपने सरमायाकारों को नोहेरा शेख ने पैगाम दिया है कि उनकी रकम पहले भी महफूज थी और आज भी महफूज है। साल 2018 से कानूनी चाराजोई का सामना करने वाली नोहेरा शेख ने अवाम बिलखुसूस ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए काम करने और आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी ऐलान किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने 447 अहल अफराद में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। असदुद्दीन ओवैसी सरबराह AIMIM की हिदायत पर कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान के गोलकुंडा मंडल के अहल अफराद को शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स हवाले किए। रेड रोज फंक्शन हॉल में मुनक्किद इस प्रोग्राम में गोलकुंडा MRO AIMIM के नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजूज़मा बदरुद्दीन, सीनियर कायदीन के अलावा कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। तकसीम शुदा चेक्स की मालियत 4,47,51,852 रुपये बताई गई है। MLA कारवान ने कहा है कि आसिफ नगर मंडल और शेखपेट मंडल के इस्तेफादा कुनिंदगान को भी जल्द ही चेक्स दिए जाएंगे। उन्होंने अहल अफराद से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने के लिए करीबी मी सेवा सेंटर्स में दरख्वास्तें दाखिल करने को कहा है। AIMIM बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने अपने हल्के के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के अहल अफराद को चेक्स सौंपे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पार्टी के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में MLA बहादुरपुरा मौज़म खान ने रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग के हमरा 754 अफराद को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स सौंपे। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुक़द्दर बाबा के अलावा मजलिसी कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में आई है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी AIMIM सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के याकुतपुरा के शाहजहां फंक्शन हॉल और ग्रैंड फंक्शन हॉल में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर समीना सुल्ताना, शफात अली के अलावा मजलिसी कायदीन, मजलिसी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हुस्नी नदवी का 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है।
तफसीलात के मुताबिक मौलाना की तबीयत गुज़िश्ता हफ्ते अचानक बिगड़ गई थी। सीने में जकड़न और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत पर उन्हें राय बरेली से लखनऊ ले जाया गया था, जहां उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन आज दौरान इलाज वो इंतकाल कर गए। मोहम्मद राबे हुस्नी नदवी यूपी के बरेली में सन 1929 में पैदा हुए थे। वो अरबी और उर्दू दोनों ज़बानों पर उबूर रखते थे। उन्होंने तकरीबन 30 किताबें तसनीफ दी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चौथे सदर और दारुल नदवतुल उलमा के नाजिम भी रहे। राब्ता आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा के रुकन असासी, मजलिस तहकीकात व नशरियात इस्लाम लखनऊ, दीनी तालीमी कौंसिल उत्तर प्रदेश और दार अरफात राय बरेली के सदर भी रहे। मौलाना ने लखनऊ के एक मुमताज़ इस्लामी मदरसे नदवतुल उलमा में इस्लामियात के उस्ताद के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया था। साल 2011 में वो उसी इदारे के चांसलर मुकर्रर किए गए थे और आखिरी सांस तक भी उसी ओहदे पर वो फाइज रहे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान 10,000 से ज्यादा मरीजों की तस्दीक की गई है। मुल्क की रियासतों दिल्ली, महाराष्ट्र व दीगर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक 10,158 मामले दर्ज किए जाने के बाद मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 44,998 रिकॉर्ड की गई है। सेहत महकमे ने इंकशाफ किया है कि पिछले 8 महीनों में ये पहला मौका है जब 10,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। सेहत महकमे के हुकाम ने कहा है कि अगले 10 से 12 दिनों में नए केसेस की तादाद में नुमायां इजाफा हो सकता है। यौमिया मुस्बी शरह 4.42% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में 11 अमवात हुई हैं और अमवात की कुल तादाद 5,31,035 हो गई है। शरह अमवात 1.19% और शरह सेहतयाबी 98.7% रही है। टीका अंदाजी मुहिम के तहत मुल्क में एक दिन में 327 अफराद को कोरोना टीका लगाया गया है, जबकि टीका लेने वालों की कुल तादाद 220,66,24,653 हो चुकी है। कोरोना के तेजी से फैलाव को देखते हुए डॉक्टरों ने आवाम को मास्क पहनने का मशवरा दिया है और दायमी अमराज में मुब्तला अफराद बुजुर्गों को मुनासिब एहतियात बरतने को कहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।